Hello everyone. In previous lecture, I explained about the balancing of masses rotating in a same plane. There were several masses rotating in single plane. Now we will discuss if the masses are rotating in different plane, how to balance them. So let us start. So today lecture, in this lecture, I am going to explain about the balancing of several masses rotating in different planes. When the several masses revolve in different planes, they may be transferred to a reference plane, briefly written as RP, which may be defined as plane passing through a point on axis of rotation and perpendicular to it. Sorry. When the several masses revolve in different planes, they may be transferred to reference plane. जैसे कि यहाँ पे सेवरल मासेस अगर रोटेट हो रहे, ये वेरियस मासेस है, ठीक है, M1, M2, M3, M4. So they may be transferred to a reference plane. We can take any one plane as the reference plane RP, which may be defined as the plane passing through point of axis of rotation and perpendicular to it. यानी कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये शाफ्ट जो होगी ये यहाँ पे रोटेट होगी और उसका परपेंडिकुलर जो प्लेन है दैट विल बी दी रेफरेंस प्लेन और आरपी, और जिसके रेफरेंस में हम परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, लेफ्ट हैंड डिस्टेंस और राइट हैंड डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे फॉर द डिफरेंट मासेस. The effect of transferring a revolving mass in one plane to reference plane is to cause a force of magnitude equal to centrifugal force of revolving mass to act in the reference plane, together with couple of magnitude equal to the product of force and the distance between the plane of rotation and reference plane. यानी कि जो भी हमारा रेफरेंस प्लेन है वहाँ से जो दूसरा मास है, सपोज दिस इज़ अवर रेफरेंस प्लेन आरपी, एंड जो दूसरे मासेस है वहाँ पे जब ये रोटेट होंगे, ठीक है, सो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा FC और यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सपोज दिस इज़ L. सो FC जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सबका लगेगा ही, सपोज दिस इज़ FC1, this is 2 and this is 3 and this is L3, suppose this is L2 distance and this is L1 distance. यहाँ पे क्या होगा, the effect of transferring or resolving mass in one plane to reference plane is to cause a force of magnitude equal to centrifugal force of revolving mass to act in the reference plane, together with a couple of magnitude equal to the product of force, suppose this is FC3 force into perpendicular distance between this plane, reference plane, and this plane, the plane of rotation. Same way there will be FC2 into L2 and here FC1 into L1. This will be couple will be acting and along with that centrifugal force भी वहाँ पे act करेगा. Now, in order to have complete balance of several revolving masses in different planes, following two conditions must be satisfied. जो भी revolving masses है उनका अगर complete balance करता है तो ये दो conditions follow होनी चाहिए. सबसे पहली है the force in reference plane must balance, the resultant force must be 0. यानी कि जो रेफरेंस प्लेन के लिए सिग्मा एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. जो रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द रेफरेंस प्लेन. और जो दूसरी कंडीशन है दैट इज़ सिग्मा कपल, जो भी कपल एक्ट हो रही है दैट शुड बी ऑल्सो रिजल्टेंट कपल शुड बी इक्वल टू 0 for the reference plane. Couple about the reference plane must balance, which means the resultant couple must be 0. Now let us
now consider 4 masses m1, m2, m3, m4 revolving in plane 1, 2, 3 and 4 respectively, as here shown in figure A. So there are 4 masses, as you can see, 1, 2, this is m1 mass, this is m2, m3 and m4, and there are 2 reference plane we have taken in between. Those are the L and M. These are the balancing L and capital M. These two are the balancing masses, L and M, and one of that mass we have taken as reference plane, and from that we will take the various distance, जिसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस होंगे दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और जो राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जो L1 होगा दैट विल बी माइनस L1, और ये जो डिस्टेंस है L2, L3, LM और L4 दैट विल बी पॉजिटिव. जो रेफरेंस प्लेन हमने लिया है उसके लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव और राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस जो होंगे वो हमको यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करने हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ मासेस, और यहाँ पे ये सारी रेडियस होगी R1, RL, R2, R3, RM एंड R4, दैट इज़ रेडियस ऑफ रोटेशन. और यहाँ पे हमारी शाफ्ट होगी जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी. जो ओमेगा होगा वो सेम होगा क्योंकि सारे के सारे मासेस है वो सेम सिंगल शाफ्ट के ऊपर माउंट किए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द रिलेटिव एंगुलर पोजीशन ऑफ these masses are shown in the end view. The relative position here it is shown in this figure. यहाँ पे जो m1 मास है सपोज दैट इज थीटा 0 एंगल, यहाँ पे सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल, थीटा 1 इज इक्वल टू 0, देन देर इज समवॉट थीटा 2 एंगल फॉर मास m2, फॉर मास m3 देर इज थीटा 3 and there is mass m4 there will be theta 4. But here you can see the angles are taken from the m2. So here theta 1 is taken from here and theta 2 is taken from this and theta 3 is taken from mass 3 to mass 4. और यहाँ पे जो अल्फा फाई और अल्फ़ा है, यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग मास थे, एक था MB और एक था ML. ठीक है, 2 बैलेंसिंग मास थे. उनका जो एंगल है वो यहाँ पे 1 के रेफरेंस में फाई है और जो 3 है यानी कि वहाँ पे यहाँ पे रेफरेंस में दैट इज़ टेकन एज अल्फ़ा. ठीक है. सो ये सारे एंगल्स हो गए. ठीक है. इसको हम कंटिन्यूस एंगल भी मेंशन कर सकते हैं. अगर मेंशन करना हो तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैं यहाँ पे थीटा 2, उसके बाद ये थीटा 3 और इसको हम थीटा 4 भी मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे ये होगा थीटा M और यहाँ पे ये एंगल होगा थीटा L विथ रेफरेंस टू 1, और जो थीटा 1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. So this will be the angular position of the masses. The magnitude of balancing mass ML and MM in the plane L and M may be obtained as discussed below. जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको कैसे मिलेगा? सबसे पहले हमको क्या करना है, टेक वन ऑफ प्लेन से L एज अ रेफरेंस प्लेन. यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लेन लिया दैट इज़ L, जो भी बैलेंसिंग मास था, कोई भी हम ले सकते हैं, M को भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि L या M में से लेना क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी अननोन है. यहाँ पे जो भी मास ऑफ L है, बैलेंसिंग मास, वो अननोन है, और यहाँ पे बैलेंसिंग मास M जो है MM दैट इज़ आल्सो अननोन. सो इन दोनों में से कोई भी एक हम अगर लेंगे तो वहाँ पे जो उसका कपल होगा, जो भी प्लेन होगा उसके लिए तो कपल क्या होगा, 0 होगा. तो मतलब एक जो होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा और उसकी मदद से एक हम फाइंड इजीली कर सकते हैं. ठीक है. तो जो रेफरेंस प्लेन हमको लेना है
वो कोई भी बैलेंसिंग मास में से ही लेना है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑल अदर प्लेन्स टू द लेफ्ट ऑफ द रेफरेंस प्लेन मे बी रिगार्डेड एज नेगेटिव एंड दोज टू द राइट रिगार्डेड एज पॉजिटिव, दैट वी हैव एक्सप्लेन। जो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस है वो नेगेटिव लिए जाएंगे और जो भी राइट साइड वाले डिस्टेंस है वो पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने फिर से वो फिगर्स मेंशन की गई है क्योंकि जो आगे जो डेटा होगा उसमें ये हेल्पफुल होगी। नाउ वी हैव टू टेबुलेट द डेटा शोन इन टेबल हियर, दिस इज आवर कंप्लीट टेबल। जो डेटा है उसको हमको टेबुलेट करना होगा एंड द प्लेन्स आर टेबुलेटेड इन द सेम ऑर्डर इन द दे रीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जो प्लेन से सबसे पहला कॉलम है दैट इज़ ऑफ प्लेन, जो यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, जो लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो राइट इस डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्लेन है दैट इज़ 1 नंबर, उसके लिए मास है m1, रेडियस ऑफ रोटेशन है r1। तो उसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन हमको मालूम है mr ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है वो एक ही शाफ्ट है तो ओमेगा सबके लिए सेम होगा, तो सबके लिए हम ओमेगा से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब m इंटू आर ही बचेगा, दैट इज़ इसका यूनिट हम लिखें तो kg इंटू मीटर में ही लेना है, ठीक है, kg इंटू मीटर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द फर्स्ट विल बी m1 r1 और उसके लिए जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे है तो वो डिस्टेंस कितना लिया है, नेगेटिव लिया है -L1। और उसके लिए कपल फाइंड करनी है तो कपल का इक्वेशन हमको मालूम है दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा कपल। और कपल के लिए भी हमको ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो डिवाइड किया था तो मतलब यहाँ पे क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर r और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा MRL। सो द कपल इक्वेशन विल बी MRL। सो दिस इज़ द कपल इक्वेशन और उसका यूनिट क्या होगा kg इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे -L1 है और mr, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -m1 r1 L1। दूसरा जो हमारा रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन के लिए मास ml है, रेडियस ऑफ रोटेशन rl है और ml rl क्या होगा, दैट विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास इनटू रेडियस ऑफ रोटेशन एंड उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम प्लेन L। अभी L प्लेन के लिए ही हम यहाँ पे L प्लेन के ऊपर ही है मास L, मास L जो है वो L प्लेन के लिए ही है तो वहाँ पे डिस्टेंस कुछ होगा नहीं, सो दैट विल बी डिस्टेंस 0, ठीक है, सेम प्लेन पे है उसके लिए। और वहाँ पे कपल भी क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो L प्लेन के लिए कपल फॉर्म नहीं होगी क्योंकि मालूम है हमको कपल कब फॉर्म होगी, जब डिस्टेंस हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ठीक है, कोई भी फोर्स लग रहा हो वहाँ पे जो भी रेफरेंस प्लेन है, सपोज यहाँ पे L रेफरेंस प्लेन है तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है और उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तभी कपल फॉर्म होगी, उसके अलावा कपल फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड नंबर मास वी हैव टेकन m2 r2, that is the mass m2 r2, that is radius of rotation, here you can see as well और ये here you can also see। so उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा m2 r2 और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे L2 से, सो हमको मिलेगा कपल फॉर दैट मास m2। और यहाँ पे क्या होगा कि जो भी फोर्स है that will be positive because we have taken the reference plane at here and the distance from the right, जो right side वाले distance है that are taken as positive for various masses, जो भी right side के distance है वो पॉजिटिव लिए है, सो यहाँ पे ये L2 होगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली L3 भी पॉजिटिव होगा, Lm भी पॉजिटिव होगा और L4 भी पॉजिटिव होगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिर मास और रेडियस का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे सिमिलरली सबके लिए और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो कपल हमको मिल जाएगा, ठीक है।
So in this way we prepare the complete table for the same. अगला जो स्टेप है that is a couple may be represented by a vector drawn perpendicular to plane of couple. The couple C1 introduced by transferring m1 of to mass to reference plane through O is proportional to m1 r1 l1 and acts in the plane through OM1 and perpendicular to paper, while the vector represented this couple is drawn in the plane of paper and perpendicular to OM1 as shown by OC1. यहाँ पे जो कपल वेक्टर है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। जो वेरियस मासेस थे उनके लिए हमने कपल वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। जो C1 है वे इंट्रोड्यूस किया है बाय ट्रांसफरिंग M1 टू रेफरेंस प्लेन थ्रू O इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से O से C1 दैट इज इक्वल टू M1 R1 L1, जितना डिस्टेंस है उतना हमने C लिया है, ठीक है। उसके बाद C2 C3 C4 और CM, और जो CL है वो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे कपल की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो इन दिस वे वी विल फॉर्म द कपल वेक्टर। ये कपल वेक्टर है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये हमको एग्जाम्पल में ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो आगे वाले 2 डायग्राम हैं वो ही ड्रॉ करने हैं और जो आगे जो 2 आएंगे वो ड्रॉ करने होंगे। सिमिलरली जो सारे के सारे यहाँ पे वेक्टर्स है वो यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं विथ वैल्यू ऑफ M1 R1 L1, जो भी टेबल में जो वैल्यू थी कपल की उसका यूज़ करके हम ड्रॉ करेंगे। Similarly, the couple vector are discussed above are turned counterclockwise through a right angle of convenient drawing as in figure D। जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे कपल वेक्टर्स को रोटेट किया है थ्रू राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री रोटेट किया है, एंड वी सी दैट द रिलेटिव पोजीशन रिमेन अनएफेक्टेड, और जो रिलेटिव पोजीशन होगी वो अनएफेक्टेड रहेंगी। नाउ द वेक्टर OC2 OC3 OC4 are parallel to the same direction as OM1 OM2 and OM4, while the vector OC1 is parallel to OM1 but in opposite direction. Hence the couple vector are drawn radially outward for masses on one side of the reference plane and radially inward for the masses on the other side of the reference plane। यानी कि जो लेफ्ट साइड के जो होंगे, ठीक है, वन साइड के लिए रेफरेंस प्लेन के, दैट आर ड्रॉन एज रेडियली आउटवर्ड एंड द प्लेन विच आर ऑन द इनवर्ड ऑन द अदर साइड आर टेकन एज रेडियली इनवर्ड्स। सो जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जो सबसे पहले 2 डायग्राम थे वो, और इसके बाद जो हम कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कपल पॉलीगॉन, और कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करने की मेथड क्या है, सबसे पहले जो M1 R1, यहाँ पे कपल C1 का मतलब आपको समझना है M1 R1 L1, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस था, ठीक है। सो माइनस की वजह से सबसे पहले नेगेटिव डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज इसकी वैल्यू आई 50 kg इंटू मीटर स्क्वायर, उसको हमको स्केल में कन्वर्ट करना होगा 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 mm। सो यहाँ पे 50 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी द 50 kg इंटू मीटर स्क्वायर, और दैट विल बी दी अवर कपल C1। उसके बाद जो θ2 एंगल होगा कपल 2 के लिए, सपोज θ2 एंगल है तो उस एंगल पे उसकी वैल्यू लेंगे। C2 विल बी इक्वल टू M2 R2 L2, C3 will be equal to M3 R3 L3 and C4 will be equal to M4 R4 L4, ठीक है। और जो रिजल्टेंट जो क्लोजिंग साइड होगी दैट विल बी अवर CM, और दैट विल बी द अवर बैलेंसिंग मास कपल। और यहाँ पे जो एंगल होंगे वो सबसे पहला ये θ2 एंगल है,
θ1 0 है। उसके बाद जो θ3 एंगल है वहाँ पे C3 कपल ड्रॉ करेंगे। फिर θ4 एंगल के लिए सपोज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये ऐसे ड्रॉ करेंगे C4 कपल एंड दैट विल बी फॉर θ4 एंगल। और यहाँ पे जो क्लोजिंग साइड होगी दैट विल बी आवर CM, और उसको हम स्केल का यूज़ करके यहाँ पे मेज़र करेंगे, ठीक है। और जो सपोज यहाँ पे मिला हमको 29 mm, सो दैट विल बी इक्वल टू 29 kg इंटू मीटर स्क्वायर। और उसी का यूज़ करके देखो अभी यहाँ पे इक्वेशन है, द वेक्टर यहाँ पे D डैश O डैश है, ठीक है। D डैश O डैश जो वेक्टर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट्स द बैलेंस्ड कपल, वो बैलेंस्ड कपल रिप्रेजेंट करेगा। और जो भी बैलेंस कपल है CM इज़ प्रोपोर्शनल टू MM RM LM। सो यहाँ पे हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे, ठीक है, स्केल का यूज़ करके। सपोज़ यहाँ पे मिला 29 kg इंटू मीटर स्क्वायर, सो वो यहाँ पे पुट करेंगे 29। यहाँ पे RM की वैल्यू मालूम है और LM की वैल्यू मालूम है, तो जो मास होगा वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ रेडियस यहाँ पे दी हुई है 0.5 मीटर और लेंथ दी हुई है 1 मीटर। सो यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाय 0.5 विल बी द यहाँ पे मास, जो भी बैलेंसिंग मास है MM हमको मिल गया। सो MM मिल जाएगा तो हमको ये कपल भी मिल जाएगी, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी मिल जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू MM RM ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आ रहेगा, MM RM ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो MM इंटू RM, और RM मालूम है, MM हमको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाएगा FCM, M के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मिल जाएगा। तो टेबल के अंदर ये वैल्यू हम पुट करेंगे और उसका यूज़ करके जैसे हमने यहाँ पे कपल पॉलीगॉन ड्रॉ किया, सिमिलरली हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग मास MM इन द प्लेन M कैन बी ऑब्टेन्ड एंड द एंगल ऑफ इंक्लूडेड ऑफ द मास मे बी मेजर्ड फ्रॉम दिस। यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, θM, और वो यहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, सो यहाँ पे θM इज इक्वल टू 5, वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं फॉर दिस मास। नाउ ड्रॉ द फोर्स पॉलीगॉन एज शोन इन फिगर। सो यहाँ पे ये जो फिगर में इंडिकेट किया है वैसे ही हम, जैसे ही FC1 है दैट इज इक्वल टू M1 R1, FC2 इज M2 R2, FC3 इज M3 R3, FC4 इज M4 R4 एंड FCM इज MM RM, और ये वैल्यू हमने लास्ट में फाइंड की। और उसके बाद जो क्लोजिंग साइड होगी, जैसे कपल पॉलीगॉन था वैसे ही फोर्स पॉलीगॉन में जो भी ये क्लोजिंग साइड हमको मिलेगी दैट विल बी दी आवर फोर्स FCL, और वही होगा हमारा लास्ट जो बैलेंसिंग मास है वो हमको मिल जाएगा। यानी कि दोनों सेंट्रीफ्यूगल, इसका इक्वेशन क्या होगा MLRL, और इसकी वैल्यू में से हमको बैलेंसिंग मास L मिल जाएगा, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। जो भी वेक्टर E टू O है दैट विल बी इक्वल टू द MLRL, और वहाँ पे हम वैल्यू RL की वैल्यू हमको मालूम है तो हमको ML मिल जाएगा। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग मास कैन बी ऑब्टेन्ड एंड द एंगल कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड फॉर दिस। जो एंगल होगा दैट विल बी द θL और अल्फा एंगल, so that will be represented in the diagram. So this is the complete method for balancing of several masses rotating in different planes. This is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.